हाइड्रेशन एनर्जी वाज डिस्कस यस्टरडे, तो बेटा आप बता सकते हो व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी बेटा? What we discussed yesterday about hydration energy? जी बेटा, can you hear me? Yes, sir. It's जी energy बेटा, released when 1 mole of gaseous ions are dissolved in excess of water. हाँ हमने कल yesterday we discussed that hydration energy is for gaseous ions. Ions can be cations, can be anions. So except hydrogen, except oxygen. Oxygen के अलावा बाकी for all the ions hydration is possible, and for hydration we discussed that gaseous ion when dissolved in water turns into aqueous ion. So this conversion of gaseous ion into aqueous ion is actually hydration energy, right? It is possible for cation as well as for anion. So sulfide ion, when added to excess of water, it turns from gaseous to aqueous ion. So such energy changes hydration energy. ये हमने पढ़ा था कल. So what we discussed yesterday about hydration energy कि gaseous ions को जब हम excess of water में dissolve करें, तो we get aqueous ions. And this is hydration. The other thing we discussed yesterday was enthalpy change of solution. Standard enthalpy change of solution. तो यस बेटा, solutions हमने क्या पढ़ा था? It will be for enthalpy change of solution will be for Compounds. usually it is for ionic compounds. Okay, solution is for ionic compounds. And how to construct equation for enthalpy change of solution? You need to take ionic compound. You know all ionic compounds are solid at room temperature. So when ionic compounds are dissolved in excess of water, so the solid state goes to aqueous state. This is enthalpy change of solution, equation for enthalpy change of solution. अच्छा, इसमें you need to know कि the equation can also be written like this. You can write gaseous sign, aqueous sign of the salt. Salt में जो भी ions हैं उनको aqueous state में लिखें, तो दोनों तरह आप equation लिख सकते हो, right? अच्छा बेटा, आप ये मुझे बताएं कि ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है, विल इट बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? हाइड्रेशन एनर्जी विल बी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? Exothermic. Exothermic. And enthalpy change of solution? Both, sir. हाँ, both possibilities are there for solution. Can be endo, can be exothermic. ठीक है? अच्छा. The other thing we discussed yesterday, and this is very important concept, if enthalpy change of solution is endothermic, if it is positive, okay? Suppose for a salt 1, and enthalpy change of solution for another salt, let us say this is salt 2, if it is exothermic. So in say which salt is more soluble? Which salt will be more soluble? Salt 1 or salt 2? Salt 2. Salt 2. Salt 2. हमने ये रूल डिस्कस किया था कि जिस सॉल्ट की enthalpy change of solution exothermic हो, that salt will be more soluble. That is more soluble salt, okay? और जिसकी enthalpy change of solution endothermic हो, that salt is less soluble. Beta, what is the reason behind this? This is less soluble salt. Why? Why is it so? जी बेटा, कोई भी बता दे क्या रीजन है? Because the second salt is exothermic, it needs less energy. हाँ, in And fact, it this, releases energy. हाँ, yes, जो second salt है, rather it absorbing energy, net energy release होगी यहाँ से. अब ये जो salt 1 है, इसका आप बताओ कि it requires energy, okay? क्योंकि endothermic है ना. एंडोथर्मिक है तो ये जो प्रोसेस होगा डिसॉल्व होने का, ये रिक्वायर करेगा, इट रिक्वायर्स एनर्जी टू गेट डिसॉल्व.
to get dissolved. अब जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो तभी सॉल्ट डिसॉल्व होगा, to get dissolved, right? Any question or confusion? कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो मस्ट शुड आस्क. ओके, अगर नहीं है कंफ्यूजन तो मुझे ये बताओ कि if I make this column, okay, this is endothermic, this is exothermic, and this column is for endo and exo both. So if I make the column like this, wait beta, okay, if I make the column like this, okay, so beta इसके साइंस क्या होंगे? एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन. जी निम्रा बेटा, आप क्या बताओगे? एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक या दोनों पॉसिबिलिटीज हैं? Enthalpy change of formation will be endo, exo, yeah, both possibilities are there. Anyone in the class? Sir, both. Both possibilities are there, okay? It's like this. Acha, for enthalpy change of neutralization? Exo? Enthalpy change of neutralization is exothermic. Okay, what about enthalpy change of combustion? C is for combustion. Sir, exo? Exothermic, okay, good. And enthalpy change of atomization. Atomization is represented like this, AT. What about atomization? Sir, endo. Sir, endo. Atomization is endothermic. क्योंकि atomization में we produce 1 mole gaseous atoms from its element. So converting an element into gaseous atoms will require energy. So this will be endothermic process. What about bond enthalpy? Standard enthalpy change of bond energy. Sir, both? अच्छा बेटा, both in principle तो both वाली बात ठीक है, क्योंकि bond breaking is endothermic and bond making is exothermic, ठीक है? लेकिन आपको जो डेटा बुकलेट में बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज गिवन है ना, वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं. तो एग्जाम व्यू पॉइंट में आप इस एंडोथर्मिक को टिक करना बॉन्ड एनर्जी के लिए, राइट बेटा? According to marking scheme or exam viewpoint, bond enthalpy or bond energy is endothermic. याद रहेगी बेटा ये बात? Bond enthalpy and bond energy would be taken as endothermic, क्योंकि डेटा बुकलेट में जो आपको वैल्यूज उन्होंने दी है ना, वो पॉजिटिव साइन के साथ दी हुई. तो एग्जामिनर इसको एंडोथर्मिक कंसिडर करेगा. केमिस्ट्री में हम फिर एंडो एक्सो दोनों कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ आपके सिलेबस में इसे एंडो कंसिडर किया गया. याद रहेगी ये बात? What about this one? Lattice enthalpy. LE is for lattice enthalpy. Lattice enthalpy exothermic. Yes, lattice enthalpy is exothermic. Shabash. And what about hydration energy? HE is for hydration energy, right? Hydration energy is Exothermic. Exothermic. Shabash. And the last one is enthalpy change of solution. Both? Both. Enthalpy change of solution and formation. ये both में आएंगे, सिर्फ ये दो. और atomization and bond enthalpy is endothermic, and the remaining all the energy changes are exothermic. ठीक है? तो you may receive question like this. इसी तरह टेबल होगा और एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे. पेपर 4 की बात मैं कर रहा हूँ. Okay. Now it's a very important discussion is going on. Okay. बेटा अब जो डिस्कशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. कंस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी साइकिल. कंस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी साइकिल. ठीक है? आप ये गौर से सुने बेटा कि ये एनर्जी साइकिल आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे.
बेटा एक रूल है, और वो रूल ये है कि एनर्जी साइकिल कंस्ट्रक्ट करने से पहले यू हैव टू कंसीडर द गिवन डेटा, राइट? गिवन डेटा की बेस पे एनर्जी साइकिल शुड बी कंस्ट्रक्टेड। अबीर बेटा आपको समझ आ रही है मेरी बात? जी सर। ओके, आयशा अलीम बेटा, यू देयर? आयशा अलीम बेटा, इधर रिप्लाई और मैसेज। ठीक है, ओके, यू देयर। आमना बेटा आप सुन रहे हो मेरी बात? आमना ताहिर, आमना ताहिर बेटा, इमामा बेटा, यू देयर? इमामा, ओके। लारे बेटा आप सुन रहे हो मुझे? लारे बेटा, यू देयर? लारे बेटा, आप अगर माइक पे आंसर नहीं करते तो कम से कम चैट में लिख दो ना। मोइस बेटा, यू देयर? नफीसा, नफीसा बेटा, ओके, गॉट रिप्लाई फ्रॉम नफीसा। नम्रा बेटा, यू देयर? ओके, चलें, ठीक है, मेजॉरिटी बच्चे हमारे साथ हैं। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी साइकिल, फॉर एग्जांपल बेटा, अगर आपको डेटा गिवन हो, दिस इज द गिवन डेटा, ठीक है, एंड द गिवन डेटा इज enthalpy change of solution for sodium chloride. Suppose this is suppose value ले रहा हूं, minus 40 kilojoule per mole. This energy change is given, and enthalpy change of hydration energy of sodium ion or hydration energy of chloride ion, ये भी given है। अच्छा, ये हाइड्रेशन है लेट्स से minus 700 kilojoule per mole, ये हाइड्रेशन है लेट्स से minus 500 kilojoule per mole, and you are to calculate lattice enthalpy. You are to calculate lattice enthalpy for sodium chloride, ठीक है, lattice enthalpy कैलकुलेट करनी है। Now how to construct suitable energy cycle, and this is the given data. So how should we utilize this data to construct an energy cycle, और उस energy cycle से हम कैलकुलेट करें lattice energy। अच्छा बेटा, मुझे बताओ, क्या हम बोर्न-हैबर साइकिल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विद दिस डेटा? कैन वी कंस्ट्रक्ट बोर्न-हैबर साइकिल? बेटा, जिन बच्चों को बोर्न-हैबर साइकिल का नहीं पता ना, वो रिकॉर्डिंग्स देखें। जिनके पास रिकॉर्डिंग्स नहीं है वो मुझे बताएं, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। बोर्न-हैबर साइकिल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बेटा इसके लिए, इस डेटा के लिए? No. हाँ, नो। क्यों बेटा, कैसे आपको पता चला कि बोर्न-हैबर साइकिल नहीं कर सकते कंस्ट्रक्ट? क्योंकि बोर्न-हैबर साइकिल के लिए आप ऐसे स्टार्ट करते हैं। बोर्न-हैबर साइकिल के लिए व्हाट यू नीड, देखो, एटोमाइजेशन रिक्वायर्ड है। एटोमाइजेशन गिवन डेटा में नहीं है, ठीक है, और फिर ये आयोनाइजेशन एनर्जी, ये बोर्न-हैबर साइकिल अगर हम बनाएं तो दिस इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। चलो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो हम डेटा बुकलेट से ले लेंगे, और फिर क्लोरीन के केस में दिस इज बॉन्ड एनर्जी बाय 2, तो चलो बॉन्ड एनर्जी भी डेटा बुकलेट से ले लेंगे। लेकिन व्हाट यू नीड हियर इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है हमारे पास गिवन डेटा में, ठीक है। उसके बाद ये आयंस जब कंबाइन होंगे तो गेट सोडियम क्लोराइड, तो दिस इज लैटिस एनर्जी। चलो, लैटिस एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है, एंड दिस इज एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, ये बोर्न-हैबर साइकिल है। अब इस बोर्न-हैबर साइकिल में देखो, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम की वैल्यू नहीं है, हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू नहीं है, तो वी कैन नॉट यूज बोर्न-हैबर साइकिल फॉर दिस डेटा। समझ आ गई बेटा? ठीक है, बोर्न-हैबर साइकिल यूज नहीं कर सकते। किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। कोई क्वेश्चन है? ठीक है, अच्छा, आप बोर्न-हैबर साइकिल यूज नहीं कर सकते तो कैसे हम एनर्जी साइकिल कंस्ट्रक्ट करें? जी बेटा सोचें, जिसमें ये सारा डेटा फिक्स हो जाए, ये सारा डेटा जिसमें फिक्स हो जाए। देखो, अगर मैं ऐसे लूं, सोडियम आयन गैशियस, क्लोराइड आयन गैशियस, and if I make NaCl solid, तो आप बेटा बताओ which energy change is this one?
जी बेटा, ठीक बता रहे हो, लैटिस एंथैल्पी है ये, ठीक है। एंड यू आर टू कैलकुलेट लैटिस एंथैल्पी, ठीक है, ये लैटिस एंथैल्पी आपने कैलकुलेट करनी है। ओके, अब देखो कि अगर हम ये जो आयंस हैं, लेफ्ट साइड पे जो आयंस हैं, इन आयंस को अगर हम एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व करें, तो सोडियम आयंस को जब हम एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व करें तो क्या फॉर्म होगा? गैशियस सोडियम आयंस को जब एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व करें तो एक्वस आयंस फॉर्म होंगे, ऐसा है बेटा। और क्लोराइड आयंस को जब हम एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व करें तो एक्वस क्लोराइड आयंस फॉर्म होंगे। अब बताओ ये लेफ्ट एरो जो डाउनवर्ड है, ये एनर्जी चेंज, कौन सी एनर्जी चेंज शो हो रही है लेफ्ट वाले एरो पे? सॉल्यूशन। बेटा दुरेशवार, हमने एक्वस में इसलिए किया है कि ये देखो आपको जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा में ये कौन सी एनर्जी है? हाइड्रेशन एनर्जी, सोडियम आयन की हाइड्रेशन एनर्जी है। और ये असल में हाइड्रेशन एनर्जी है फॉर सोडियम आयंस प्लस हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ क्लोराइड आयंस, क्योंकि गैशियस आयन का एक्वस आयन में कन्वर्ट होना इज एक्चुअली हाइड्रेशन। सोचें इस पॉइंट को, गैशियस आयंस का एक्वस आयन में कन्वर्ट होना इज एक्चुअली हाइड्रेशन। तो ये जो लेफ्ट वाला एरो है ये हाइड्रेशन एनर्जी को शो कर रहा है, सोडियम आयन की हाइड्रेशन एनर्जी प्लस क्लोराइड आयन की हाइड्रेशन एनर्जी शो हो रही है। दुरेशवार, यू गॉट द आंसर? यस सर, समझ आ गई। बाकी बेटा जिन बच्चों के क्वेश्चन है तो पूछें, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू शुड आस्क, यू शुड आस्क द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एएस में भी पूछा जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नहीं है तो बेटा अब मुझे बताओ कि अगर ये जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को अगर हम एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व करें तो सोडियम क्लोराइड सॉलिड से ये बनेगा सोडियम आयन एक्वस एंड क्लोराइड आयन एक्वस। ये कौन सी एनर्जी चेंज है राइट साइड वाले एरो पे? Solution. दिस इज एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, शाबाश। क्योंकि 1 मोल आयोनिक कंपाउंड को जब आप डिसॉल्व करें ना तो दिस इज एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपके पास 3 एरोस हैं, इन 3 एरोस में रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है? आपके पास 3, जी कौन सा वाला बेटा? लेफ्ट वाला एरो रिजल्टेंट है, शाबाश, गुड बेटा। ये रिजल्टेंट, ये जो एरो है ना ये रिजल्टेंट है, इसमें किसी को डाउट है बेटा? ये रिजल्टेंट एरोस का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था एएस में भी, वहां मैंने क्या बताया था कि जो रिजल्टेंट एरो पे जो एनर्जी चेंज है वो बाकी 2 एरोस की एनर्जी चेंज के सम के इक्वल होगी। तो इसका मतलब है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम आयन प्लस हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ क्लोराइड आयन, ये रिजल्टेंट एरो की एनर्जी चेंजेस हैं, वो इक्वल होगी लैटिस एनर्जी प्लस एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन की। अब आप देखें जितना गिवन डेटा है वो सब इसमें फिट हो रहा है कि नहीं एंथैल्पी साइकिल में? जो गिवन डेटा है, लैटिस एंथैल्पी आपने कैलकुलेट करनी है, दिस इज एक्स, एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन इज -40 और हाइड्रेशन ऑफ सोडियम आयन इज -700, हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इज -500। तो सिंपल इज दिस। आप इस इक्वेशन के थ्रू जो एंड में बनी है उससे आप अननोन एनर्जी चेंज कैलकुलेट कर सकते हो। तो टोटल ये 2 मार्क्स की कैलकुलेशन और 2 मार्क्स की साइकिल, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गए। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन बेटा? इस एनर्जी साइकिल, ये एबिलिटी होना कि आप डेटा से साइकिल बनाएं, ये इस चैप्टर का पर्पस है। अगर इस चैप्टर के एंड पे आप डेटा से साइकिल बना सकते हो तो बस इसका मतलब है कि आप जो 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 रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। फॉर एग्जांपल अगर डेटा ऐसे है बेटा कि ये है लैटिस एनर्जी फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एंड दिस इज -250 किलो जॉल पर मोल, और हाइड्रेशन एनर्जी है मैग्नीशियम आयन की -550 किलो जॉल पर मोल, और एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की +100, और हाइड्रेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोक्साइड आयन इज टू कैलकुलेट। अब एनर्जी साइकिल कैसे बनानी चाहिए बेटा?
आपने ये कैलकुलेट करना है हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रोक्साइड आयन की हाइड्रेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, और ये गिवन डेटा है ऑन द राइट। अब इससे एनर्जी साइकिल कंस्ट्रक्ट करनी है। हाउ टू कंस्ट्रक्ट एनर्जी साइकिल? जी बेटा, कहां से स्टार्ट करें? जी बेटा, कुछ ध्यान में आ रहा है तो बताइए। आप देखें, फोकस करें ना, ये सोल्यूशन किसकी है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। लैटिस एनर्जी किसकी है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। अब आप देखें, इफ आई टेक मैग्नीशियम आयन इन गैसियस स्टेट and hydroxide ion in gaseous state, so the product will be magnesium hydroxide. Which energy change is represented by this equation? ये कौन सी एनर्जी चेंज शो हो रही है? Lattice enthalpy. ये लैटिस एंथैल्पी है। अच्छा, जो लैटिस एंथैल्पी असल में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? -250। दिस इज एक्चुअली -250। ठीक है। उसके बाद आप देखें, इन गैसियस आयंस को अगर हम एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व करें तो व्हाट यू विल गेट? गैसियस आयन विल कन्वर्ट इनटू एक्वस आयन। गैसियस आयन विल कन्वर्ट इनटू एक्वस आयन। तो ये जो लेफ्ट वाला एरो है, इस पे कौन सी एनर्जी चेंजेस हैं? इस लेफ्ट एरो पे कौन सा प्रोसेस टेक प्लेस कर रहा है? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी किसकी? मैग्नीशियम आयन की, मैग्नीशियम और +2 इनटू हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोक्साइड, राइट। तो अब आप देखें, मैग्नीशियम आयन की हाइड्रेशन एनर्जी कितनी है? -550 है। +2 इनटू हाइड्रोक्साइड आयन की हाइड्रेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो 2x। हाइड्रोक्साइड आयन की हाइड्रेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो दिस विल बी 2x, राइट। और बेटा, ये राइट वाला जो एरो है, इसको अगर हम एक्सेस ऑफ वाटर में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करें तो व्हिच एनर्जी चेंज इज शोन बाय दिस राइट एरो? सॉल्यूशन। Solution, yes, this is enthalpy change of solution, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? द गिवन डेटा +100 +100। अब इसमें रिजल्टेंट वेक्टर देखिए, विच वेक्टर इज रिजल्टेंट वेक्टर? लेफ्ट वाला वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर पे जो एनर्जी चेंज है दैट इज -550 + 2x। ये बाकी दो वेक्टर्स की एनर्जी चेंजेस के सम के इक्वल होगा -250 + 100। So 2x will be equal to -250 + 100 -550. ठीक है। So in this way you can calculate the value of x, and x will be hydration energy. Any confusion, beta? Any confusion? No, sir. नो सर। ठीक है, बाकी बेटा बच्चों को क्लियर हो रहा? निम्रा बेटा, एनी कंफ्यूजन? No, sir. अच्छा, ओके। अबीर बेटा, एनी कंफ्यूजन? No, sir. रायान बेटा, एनी कंफ्यूजन? No, sir. अच्छा, तो अब आई विल गिव यू 2 to 3 minutes, ठीक है। आप इस सॉल्व करके आंसर बताएं, हर बच्चे के पास आंसर होना चाहिए। तो इफ आई lattice energy of magnesium chloride is to calculate enthalpy change of solution for magnesium chloride is +80.0 kilojoule per mole. Hydration energy for magnesium ion is -550. Hydration energy of chloride ion is -300. तो बेटा, ये lattice energy को की क्या वैल्यू होगी? एनर्जी साइकिल कंस्ट्रक्ट करें, एनर्जी साइकिल यहां बनाएं, और आंसर बेटा या तो चैट में लिखें या मुझे बता दें वैसे ही। जस्ट टेक 2 minutes, ओके। अपनी नोटबुक उठाएं, अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को। आंसर अगर आप बोलना नहीं चाहते तो चैट में लिख दें कि ये आपका आंसर आ रहा है। चलें जी, प्रोसीड करें। प्रोसीड करें बेटा।
यहाँ से मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ इतनी कि ये इफ यू टेक मैग्नीशियम आयन गैशियस प्लस 2 क्लोराइड आयन गैशियस, it goes to MgCl2 solid. So this is lattice enthalpy जो कि कैलकुलेट करनी है, this is x. बाकी आप एनर्जी साइकिल खुद कंप्लीट करें और फिर सॉल्व करें अकॉर्डिंगली. Sir, minus 1230. Minus 1230. Yes, sir. Minus 1230 है. minus 1230 according to Naval and Moyes. ठीक है, बाकी Yes, sir. Same answer. minus 1230. Ryan, what is your answer? Yes, sir. I hope that you are solving the question. Yes, sir. Minus 1230. Minus 1230 सबका आ रहा. और एनर्जी साइकिल बेटा वो आई होप के ऐसे बनाई है आप लोगों ने. तो ये लेफ्ट एरो पे, ओके, लेफ्ट एरो पे बेटा आप लोगों ने हाइड्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन विच इज -550 प्लस 2 into -300 ऐसे किया ना. 2 मोल्स आपने क्लोराइड के कंसीडर किए. और the Yes, arrow sir. on the right hand side is enthalpy change of solution which is +80 and the resultant vector is on the left. So -550 plus 2 into -300 equals x plus 80. I hope कि इस तरह से सॉल्व किया. ठीक है. अच्छा, इस कॉन्सेप्ट की और मैं प्रैक्टिस करवाऊं या इज दिस क्लियर? इतनी एग्जांपल्स काफी हैं. सर काफी है. काफी है, ओके. चलें. अच्छा, मैं वैसे ही अब जरा आप लोगों को चेक करना चाहता हूँ आप कहाँ किस स्टेटस में हैं. थोड़ा मैं दूं एक क्वेश्चन क्रिएटिव सा जिसकी मैं आपको बोलूँ कि आप एनर्जी साइकिल बनाएं. देखिए, हमारा अब पर्पस ये है कि हम ये क्रिएटिविटी से प्योरली क्रिएटिव वर्क, डेटा को एनर्जी साइकिल में कन्वर्ट करना. इट्स अ काइंड ऑफ क्रिएटिव वर्क. तो एटोमाइजेशन, ठीक है, एटोमाइजेशन ऑफ ब्रोमीन अगर हमें गिवन हो, राइट, एटोमाइजेशन ऑफ ब्रोमीन, सपोज एटोमाइजेशन ऑफ ब्रोमीन कैलकुलेट करनी है. ठीक है. अच्छा, और बॉन्ड एनर्जी ब्रोमीन की गिवन हो, बेटा कुछ डेटा बुकलेट से बताएगा बॉन्ड एनर्जी क्या है ब्रोमीन की, और वेपोराइजेशन ऑफ ब्रोमीन. लेट्स से वेपोराइजेशन ऑफ ब्रोमीन इज +70.0 किलोजूल पर मोल. बॉन्ड एनर्जी बेटा ब्रोमीन की कोई बता सकता है डेटा बुकलेट देके? $193. 193. बेटा आप इस डेटा को एनर्जी साइकिल में कन्वर्ट कर सकते हैं. इस डेटा से एनर्जी साइकिल आप बना सकते हैं. और एनर्जी साइकिल भी ऐसी जिससे आप एटोमाइजेशन कैलकुलेट कर सकें ब्रोमीन की. अब ये क्रिएटिविटी ओरिएंटेड थिंग है. यू कैन टेक योर टाइम. आपको 2-3 मिनट आप ले लें, आराम से सोचें. एनर्जी साइकिल आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं. आप व्हाट्सएप पे मुझे शेयर अगर करना चाहते हैं तो कर दें. Just take your time. Convert this data into energy cycle. Sir, Br2L becomes 2Br gas. Wait. Br2 liquid goes to 2Br gas. 2Br gas. So which energy change is this one? Atomization. This is अच्छा atomization. You say. Two बाकी into बच्चे बेटा, हाँ शाबाश. This is 2 into atomization. Why 2 into atomization? Why 2 into atomization? 2 मोल gaseous atoms are produced. ठीक है, चलें. अब बाकी 2 एनर्जी चेंज को कैसे एडजस्ट करें? एटोमाइजेशन तो हो गई एडजस्ट. देन व्हाट अबाउट द अदर 2 चेंजेस? यस बेटा, क्या हो गया है? ये देखो Br2 लिक्विड को इफ आई राइट Br2 गैस, तो विच एनर्जी चेंज इज दिस वन? लिक्विड से गैस में कन्वर्जन इज विच चेंज? Vaporization. Vaporization. This is vaporization.
because liquid going to gas, and this is plus 70, right? अच्छा, अब मुझे बताओ कि जो ये लास्ट थिंग है, इसका एरो अपवर्ड होगा या एरो डाउनवर्ड होगा? Upwards. हाँ, एरो अपवर्ड होगा, शाबाश, गुड हो गया। एरो अपवर्ड करें। अब ये कौन सी एनर्जी चेंज है? Bond energy. बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी याद रखें, गैशियस मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी होती है, सॉलिड और लिक्विड की बॉन्ड एनर्जी नहीं होती, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड को आप हीट करोगे तो स्टेट चेंज होना शुरू हो जाएगी। बॉन्ड तो तभी ब्रेक होगा जब गैशियस स्टेट में हो सब्सटेंस। गैशियस स्टेट की बॉन्ड एनर्जी होती है। तो यस, दिस इज बॉन्ड एनर्जी व्हिच इज एक्चुअली 193। आप बताओ रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है इसमें? जस्ट अप्लाई योर फिजिक्स, व्हाट यू स्टडीड इन फिजिक्स, व्हिच इज रिजल्टेंट वेक्टर? Sir, ऊपर वाला. ये एटोमाइजेशन वाला, एटोमाइजेशन एनर्जी वाला वेक्टर रिजल्टेंट Yes. वेक्टर है। बाकी बच्चे क्या कहते हैं? ये दुर्शवा ठीक कह रही है? Yes, sir, but I'm confused. वो arrow नीचे नहीं हो सकता? कौन सा, राइट वाला? अच्छा नहीं, समझ आ गई, वो gaseous। मॉलिक्यूल से एटम बने तो वो बॉन्ड एनर्जी होगी ना बेटा। बॉन्ड एनर्जी को बस हम एंडोथर्मिक कंसीडर कर रहे हैं ना। पीछे आपने टेबल देखा, उसमें मैंने बॉन्ड एनर्जी को क्या कंसीडर किया था? बॉन्ड एनर्जी को क्या कंसीडर किया? एंडोथर्मिक, ठीक है। इसलिए अब इस एरो को ऊपर होना चाहिए ना, Okay, sir. ठीक है। अच्छा, अब रिजल्टेंट वेक्टर ये है बेटा, ये आप कह रहे हैं दिस इज रिजल्टेंट, ओके। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज 2 into atomization will be equal to plus 70 plus 193. So atomization energy is plus 70 plus 193 divided by 2, ठीक है। तो बस इससे जो भी आंसर आया दैट इज एटोमाइजेशन एनर्जी, ठीक है। So we are doing it according to the Hess's law. According to Hess's law we are going to discuss this. Any confusion बेटा? No, sir. अच्छा, ओके। अब देखो एक और, अब ये भी क्रिएटिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। Now this is calcium solid and it goes to calcium dipositive aqueous, और जो डेटा गिवन है, एंड यू आर टू कैलकुलेट दिस एनर्जी चेंज, ओके, एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस प्रोसेस यू नीड टू कैलकुलेट। अच्छा, जो डेटा गिवन है आपको, सपोज जो गिवन डेटा है दैट हैज hydration energy of calcium ion which is minus 700, and that has atomization of calcium which is plus 200. अब मुझे बताओ how to construct energy cycle. एनर्जी साइकिल इस तरह से कि यू आर एबल टू कैलकुलेट दिस डेल्टा एच, ये वाला जो डेल्टा एच है। This is the given data on the right hand side. The equation is given, the unknown is indicated. So how will you construct energy cycle? सर हम पहले कैल्शियम को गैसियस में कन्वर्ट करेंगे। किसको बेटा? कैल्शियम को, जो solid. फर्स्ट स्टेप है। अच्छा, सॉलिड से गैसियस, ठीक है जी, चलें जी। इस यानी यू वांट टू से कि कैल्शियम सॉलिड गोज टू कैल्शियम गैस, ठीक है। ये एटमाइजेशन होगा। ये एटोमाइजेशन है व्हिच इज प्लस जी, सर। 200, दिस इज प्लस 200, राइट? एटोमाइजेशन तो प्लस 2, उसके बाद Ionization? हाँ, Yes, sir, आयोनाइजेशन, energy. First फर्स्ट और सेकंड दोनों आयोनाइजेशन एनर्जी यूज करें, ठीक है। फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों आयोनाइजेशन एनर्जी यूज करें। अच्छा चलो, उसके बाद हाइड्रेशन Hydration energy. अपवर्ड हाइड्रेशन एनर्जी इज लाइक दिस। तो हाइड्रेशन एनर्जी इज गिवन ना, व्हिच इज हाउ मच? माइनस 700। और बेटा डेटा बुकलेट से हाइड्रेशन एनर्जी देखो, दिस इज डेल्टा एच। फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कैल्शियम की कितनी है बेटा? जी बेटा, एनीवन? 590 है first, और दूसरी? और second है 1150। अच्छा, अब बेटा इसमें कैसे रिजल्ट, इसमें रिजल्टेंट वेक्टर पे आप अप्लाई कर सकते हो। और अब हेसेस लॉ का कॉन्सेप्ट आपको पता है ना कि ये वन स्टेप है, ये ऊपर वाला, ये वन स्टेप प्रोसेस है। वो अल्टरनेट पाथ ये है ऐसा कि नहीं? अल्टरनेट पाथ में 3 स्टेप्स हैं, ये अल्टरनेट पाथ है। तो आपने हेसेस लॉ का पढ़ा था ना कि अगर रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो या मल्टीपल स्टेप में, व्हाट हेसेस लॉ सेज
रिएक्शन, एक स्टेप रिएक्शन इज दिस डेल्टा H, और अल्टरनेट पाथ पे 3 स्टेप्स हैं, तो 3 स्टेप्स में 200 प्लस 590 प्लस 1150 और माइनस 700। ये बात समझ में आ रही है? तो एनर्जी चेंज क्या हुई? सर 1240 1240 प्लस 1240 किलो जॉल पर मोल। एनी कंफ्यूजन बेटा? कोई कंफ्यूजन है किसी को? यू कैन आस्क। ये अब हम इस पॉइंट पे आ गए हैं कि हमने एनर्जी साइकिल्स किस तरह से कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, अच्छा अब मैं कोई आप लोगों को दूं कोई क्वेश्चन कि आपको ट्राई करो, और वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल उसका। अच्छा, उससे पहले बेटा मैं थोड़ा सा ये बैकग्राउंड डेवलप करूं। ये एनर्जी चेंज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सी एनर्जी चेंज है? Which energy change is represented by this equation? ये कौन सी एनर्जी चेंज शो होगी? Bond energy. बॉन्ड एनर्जी तो बेटा गैसियस मॉलिक्यूल की होती है ना। Sir, reverse of lattice energy. शाबाश, दिस इज रिवर्स ऑफ लैटिस एनर्जी। शाबाश, सही कह रहे हो। ये हम इसको कह सकते हैं रिवर्स ऑफ लैटिस एनर्जी, ऑफ लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी का रिवर्स। तो रिवर्स ऑफ लैटिस एंथैल्पी को लिखेंगे कैसे? रिवर्स के लिए माइनस साइन है, और ये लैटिस एनर्जी। समझ आई? आप इस तरह एग्जामिनर आपको आगे पीछे घुमाता रहेगा पेपर में, ठीक है? तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, ओके, विद द कॉन्सेप्ट्स। ये देखो, आपने तो ये पढ़ा था कि गैसियस आयन से जब 1 मोल आयोनिक सॉलिड फॉर्म हो तो दिस इज लैटिस एंथैल्पी। तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि एग्जामिनर इसे फ्लिप कर दे इसी इक्वेशन को। तो जब इसे फ्लिप कर दोगे इक्वेशन को, तो जाहिर एनर्जी चेंज भी तो फ्लिप हो जाएगी ना। जब इक्वेशन फ्लिप की तो वो एनर्जी चेंज भी फ्लिप करो, तो ये माइनस लैटिस एनर्जी हो जाएगा। गॉट द कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट बेटा आई होप के क्लियर हो गया है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क क्वेश्चन। नो क्वेश्चन? तो ये बताओ, विच एनर्जी चेंज इज दिस वन? Which energy change is shown by this equation? Yes. जी बेटा, दुर्शवार रिवर्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। रिवर्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, मुझे वैसे ये बताएं कि इसको कैन आई से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड होते थे ना, तो कैन आई से कि दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? जी मोइस बेटा, would you like to comment? Is it electron affinity or not? This is not an electron affinity. ठीक है? Remember this thing. This is not electron affinity, because electron affinity is for non-metals, number one, and electron affinity gives negative ion, right? Electron affinity से हमेशा negative ion बनेगा, और ऊपर वाली इक्वेशन में आप देखो नेगेटिव आयन तो नहीं बन रहा। That is why the equation above is not an electron affinity. ठीक है? तो अब ये क्या है? ये असल में रिवर्स है, रिवर्स ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है? और रिवर्स के लिए आप माइनस साइन लगाओ, और आयोनाइजेशन एनर्जी डेटा बुकलेट से आप सिलेक्ट कर लोगे। राइट बेटा? लेकिन ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रिवर्स नहीं है। सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में नेगेटिव आयन बनता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटल्स के लिए होती है।